Hello everyone, my name is Omkant Thakur. I have secured All India Rank 52 in UPSC Civil Services Examination 2019. My optional was Geography, and I was contacted by DKT to share my strategies related to Geography. So here I am. Geography, basically you would be thinking that why one should choose Geography. So I will be talking first about that in a brief. Then should we go for Geography optional coaching or not, that will be my second point, and third I will give you my personal opinion and what I followed and not. So first thing, why I chose Geography. Basically I have done computer science and engineering in my graduation, and this is not in the list of UPSC, we all know that. So I have to choose some optional. Second, it also covers broad areas of GS, where in GS paper 1 Geography has good weightage, then GS paper 3 you have environment, even it helps in answer writing, it helps in essay writing, and also clearing prelims. So basically if you see the coverage of this paper in whole preparation of UPSC, it's very good, and that's where the cost benefit analysis comes, and you have the interest, first thing. Second, you have passion for the subject, and third, you want to cover the syllabus in a limited time, so you go for Geography. Coaching or not, yes I did, because my schooling was in Hindi medium. I studied Bhugol, not Geography. So my comparison always in back of my mind, like मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं, एक बार कोचिंग कर लेता हूँ इंग्लिश में, थोड़ा सा वो टर्म्स, वो वोकैबलरीज, वो कॉन्टेक्स्ट, वो सब समझ में आ जाएंगे फिर से इंग्लिश में. that switch of medium was biggest reason for me to do a coaching. Now coming to the Geography strategy part. So one can directly jump to the strategy part and see what's my strategy for Geography. Basically Geography has three broad areas: Physical Geography, Human Geography, and Indian Geography. Indian Geography is paper 2. I will be covering first that. Indian Geography में D.R. Khuller पढ़ लो आप. D.R. Khuller is the best book, the Bible. It is a thick book. मैंने क्या किया, इसको पतले पतले स्लॉट्स में, पतले पतले चैप्टर्स में बांट लिया, और वो easy होता था to handle, to carry, to study, to revise and all. Once I read through that book, second time I read and take out the notes. Once notes are done, then there is no need of that book. Now you have to update those notes with the current affairs, because paper 2 is all about your geographical knowledge plus current affairs and India map pointing. If you do these three things, you will get the the best marks in Geography. Last year paper 2 I scored 169, and I think that's a good marks out of 250. Now coming to the paper 1. Paper 1 is two parts: part A, Physical Geography; part B, Human Geography. For Physical Geography, you have studied some Physical Geography for prelims, you are clearing prelims and preparing for mains, or even if you have your you have the schedule to prepare everything, so go with NCERT first, then GC Leong. Make one separate notebook for GC Leong. You practice the diagrams, you practice in the last of the GC Leong they have given many things in the data format. It's like this much of rainfall happens. They have graphs also, like ups and downs of January to December, how rainfall happens, how temperature variations happens for every climatic reasons. That I have made. Wherever it is required, you can put it. Even if it is a soil question, you can show that this is the variation of climate, and due to this rainfall and due to this soil type is this. So that's the thing, you have to link many things. Knowledge is one thing, but wisdom comes where you link those things and get the best out of it. Coming to the point, like NCERT, GC Leong, then you have third point as a Savinder Singh. I think every topper from Geography optional reads Savinder Singh. It's a good book from the point of view of UPSC. I would say good book from the point of view of UPSC syllabus. Then you read, I read Physical Geography, all units 1 to 5. Some people read Geomorphology from P. Dayal, some people read Geomorphology from Savinder Singh. I read from P. Dayal because many topics were not covered in Savinder Singh. So P. Dayal Geomorphology
again selectively you go for geomorphological cycles, you go for the planation surfaces, isostacy. These chapters are covered well in PDAL, very well, but diagrams are little weak, but theory wise and written, very well written. So those points you can take. Then you come to the next point. Next is environmental geography. ALS booklet was enough for me. Then Shankar IAS I prepared for prelims, those notes were enough. Then current affairs, so I can link and think and make my answer geographical. So वो ज़्यादा challenging नहीं था. That you can do if you have some facts, data, and you have prepared your environment part very well. Soil geography, you go for Rupa Made Simple. It's very good book for soil. I think pedology is very good. There you can do that part is very good. You have to go for that. Or anyway, you read Rupa 1, that is Made Simple Rupa Geography. They have two parts, Rupa 1 and Rupa 2. You read both the books, very good books. So I would recommend कि go through that. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना ही किया था. 2017 में आई गॉट 272 मार्क्स. दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ ज्योग्राफी, बट समहाउ आई सर्वाइव्ड एंड मीन्स फिर प्रिपेयर किया. तो सेकेंड अटेम्प्ट में और लास्ट ईयर तो मैंने ज़्यादा कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया. फॉर 2018 अटेम्प्ट आई एडेड 2 more things like स्ट्रॉलर मैंने एक बार स्कैन किया जस्ट टू गेट द डायग्राम्स और कुछ छूट ना जाए और थोड़ा बहुत. सो देयर आर मेनी इनोवेटिव डायग्राम्स. यू डोंट रीड द बुक, यू जस्ट गो थ्रू. जहाँ भी फोटो है ना, जहाँ भी रंगीन पिक्चर्स हैं, कलर पिक्चर्स हैं, जस्ट टेक दोज आउट. दोज आर वेरी गुड. If you think that it can be implemented in exam and make those diagrams handy, very good. Some good definitions are there, take it. उसके बाद स्टॉलर का काम नहीं है. डोंट बाय दैट बुक, डोंट जस्ट PDF ले लो, उसमें से ही देख के कर लो, स्कैन कर लो. देन क्रिचफील्ड, इट्स वेरी गुड बुक. आई थिंक फॉर क्लाइमेटोलॉजी क्रिचफील्ड शुड बी रेड. सविंदर सिंह में जो छूटा रहता है या कुछ नहीं कवर्ड रहता है, क्रिचफील्ड हैज़ कवर्ड वेरी वेल. एक बार जरूर पढ़ सकते हो, एक बार ही पढ़ के नोट्स वोट्स निकाल लो. थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है. उसके अलावा आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की डिक्शनरी है, जो कि पेंगुइन की आती थी, अब नहीं आती है, तो यू कैन गेट द जेरोक्स कॉपी ऑल्सो. उसको भी स्कैन करके ग्लॉसरी वगैरह देख लो. फिजिकल मोटा मोटी कवर हो गया. वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए. दोज टेक्निक्स आई लर्न इन ALS बेसिकली, बट यू कैन लर्न, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स एंड मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन लर्न हाउ टू ड्रॉ मैप्स in seconds, like 10 seconds, 15 seconds you can draw world map. You have to also learn to draw the partial world map, like only South America, only North America, like that. Now the part is human geography. Human geography starts with perspective, where many people are confused. I was also confused, and literally in my even the 3 attempts I have scored I have scored well, and I got the rank in all the attempts, all the 3 mains. But still I think that this part is very confusing. Many people are not able to deliver the lectures, the classes, the quality materials in the perspective. So आप सुदीप्ता अधिकारी की बुक पढ़ो, एक बार हिस्टोरिकली पढ़ जाओ, दैट विल गिव यू मेनी थिंग्स. देन सिलेबस के अनुसार से जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स निकाल लो, दैट्स वेरी गुड. माजिद हुसैन में जो चीज़ें सुदीप्ता अधिकारी में नहीं कवर हैं, वो माजिद हुसैन की जो पर्सपेक्टिव की बुक्स हैं उनसे कवर कर लो आप. ज्योग्राफिकल थॉट्स वो हो जाएगा. देन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन की बुक है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इतनी पतली है. उसका जो यूनिट है ना मॉडल्स इन ज्योग्राफी का, जहाँ तक सिलेबस है उतना ही पढ़ना है. उसके आगे पॉपुलेशन और ये सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ना है. उन्होंने बस पतली बुक बनाने के चक्कर में वो बाद में और वैल्यू एडिशन कर दिए हैं, बट मेन काम जो है वो बहुत शुरुआत में जो है 2-3 चैप्टर वही है. सिलेबस देखें, मॉडल्स इन ज्योग्राफी उतना ही पढ़ें, पूरी बुक ना पढ़ें. देन कमिंग टू द थर्ड, पॉपुलेशन ज्योग्राफी. इसके लिए आपको जो है माजिद हुसैन की एक अलग बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे पढ़ें. प्लस ALS का मटेरियल वेरी गुड है, मार्केट में भी मिल जाएगा, उसमें से आप पॉपुलेशन के बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लें. Then coming to the fourth is your economic geography and this population having settlement also. For settlement ALS booklet plus K Siddhartha for urban settlement. Then coming to the economic geography, economic के लिए current से ज़्यादा रहेगा. 6th, 7th एंड 8th की जो ओल्ड NCERT है ज्योग्राफी की, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसको गूगल करके उनके लेटेस्ट फैक्ट्स एंड डेटा रख लेंगे, तो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी मोटा मोटी करंट से वो लोग लिंक करते हैं. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, यू विल बी इजीली एबल टू टैकल. ओनली थिंग है कि कैसे उसमें हम पर्सपेक्टिव के व्यूज़ एंड पॉइंट्स एंड थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं,
दैट्स द मेन थिंग एंड दैट विल कम थ्रू योर प्रैक्टिस, योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। होगा तो मैं जो इस वीडियो में अगर लिंक शेयर कर दूंगा माय ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी, देयर यू कैन सी कि हाउ वन शुड अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। मेनी टॉपर्स हैव सेड दैट आपके सिलेबस का फुल कवरेज होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, देन मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, प्लस मैं एक ये फॉलो करता था PEFMD, पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। एवरी आंसर शुड हैव दिस PEFMD। GS में भी आप सोचो कि हर पर्सपेक्टिव से आप वो आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, प्लस एग्जाम्पल्स दे पा रहे हो कि नहीं, प्लस कुछ फैक्ट्स दे रहे हो कि नहीं, और मैप्स एंड डायग्राम्स तो ऑलवेज एडेड बेनिफिट है, एक्स्ट्रा मार्क्स देगा ही देगा, बट इट शुड बी रिलेवेंट। डायग्राम्स के चक्कर में बहुत लोग कुछ भी बना देते हैं। वो एक सर्कल बनाया, एक ऐसे 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 एक वेब डायग्राम बनाया और स्पाइडर वेब को बोलते हैं डायग्राम है। नो, दैट्स नॉट डायग्राम। डायग्राम शुड हैव सम मीनिंग, it should convey some meaning. It should not be like if you write those 5 points in bullet, that's also you will fetch equal marks. Based on my personal experience, last 3 attempts I have cleared mains, got rank. I'm telling you, it's not one time, 3 times I have cleared, and I have cleared even the state PCS also. I'm telling you, either you write in bullet or you write in paragraph or you write that webbing thing or something like that, Ashtavakra, you get the equal marks. Until and unless it is something value added, you won't get extra mark. So बहुत लोग, नए लोग आजकल ये बना लो, वो डायग्राम बना, वो लास्ट मिनट में काम आते हैं। एक स्पाइरल बनाया, टाइम नहीं है, 5 पॉइंट लिख दिया, हो गए, 2 मिनट में काम खत्म, वो लास्ट में करते हैं। बट इफ़ यू डू दैट थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, इट वोंट वर्क, इट वोंट फेच यू मार्क्स। यू हैव टू एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज। आखिर डायरेक्टिव तो देखो क्या बोल रहा है, कॉमेंट, इवेल्युएट, और आप क्या बना रहे हो, कुछ भी एक स्पाइडर बना रहे हो, इट वोंट वर्क। सो डायग्राम्स कैसे करने हैं वो लिंक अगर मैं शेयर करूंगा, इफ DKT अलाउज मी, आई विल शेयर दैट लिंक ऑन यूट्यूब। यू गाइज कैन गो थ्रू एंड सी कि डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करना है, और मेनी चैनल्स आर देयर, उनको भी देखो, फिर देखो कि आप पे क्या सूट कर रहा है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, GS के अकॉर्डिंग। दैट विल हेल्प इन योर GS also, not only in optional. Then you have the last point, development, regional development. There I followed ALS booklet. Other than that you have some material here and there. So एक जगह consolidated नहीं है, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो you fetch from other sources। वो हो गया। एटलस के लिए मैंने बता दिया, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस कर लो। तो आपका जो है पेपर 2 देन पेपर 1 कवर्ड ऑल। स्टडी में आप पहले पेपर 1 पढ़ें, फिजिकल पार्ट पढ़ें, फिर ह्यूमन पार्ट पढ़ें। ये लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं कि पहले इंडियन पढ़ लें क्या, नहीं, पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, वो भी NCERT से स्टार्ट करें, फिर GC ले आऊँ, फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ें, देन रीड इंडियन ज्योग्राफी। बट NCERT में आप सारा पढ़ जाएं, लेकिन जो मेन बुक्स हैं उसमें आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। रूपा की दोनों बुक अच्छी हैं, प्लस माजिद हुसैन की बुक्स आ गई, प्लस K सिद्धार्था फॉर अर्बन सेलेक्टिवली, प्लस आपका मैंने क्या बोला, पर्सपेक्टिव फॉर सुदीप्ता अधिकारी, माजिद हुसैन, सब नोट्स हियर एंड देयर, यू कैन मेक इट। एक और विद्या मित्र करके चैनल है यूट्यूब पे, नो वन नोज आई थिंक, और वेरी फ्यू पीपल नो, उस पर उन्होंने पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वो भी देख सकते हैं। विद्या मित्र पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी का जो पर्सपेक्टिव वाला एंगल है, अगर किसी को कुछ नहीं आता है ना, तो वो वीडियो देख लो, फिर बुक पढ़ लो। प्लस इसमें थोड़ा सा आपको जो है इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है कि पर्सपेक्टिव आपको कहीं कहीं पे डायरेक्ट डेफिनेशन, कुछ ज्योग्राफर ने क्या बोला वो याद करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना होगा। तो दिस वाज ओवरऑल स्ट्रेटजी अबाउट ज्योग्राफी। एक चीज़ और ऐड करूँगा लास्ट, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ज्योग्राफी आप बिल्कुल बुक से आप पूरी ज्योग्राफी लास्ट मोमेंट पे नहीं रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाएं, फिर उसको और श्रिंक करें और छोटा करते जाए और वैल्यू एडिशन करें, बट कोशिश करें कि छोटा हो रहा है, मतलब नोट्स में कंटेंट ज़्यादा आ रहे हैं बट नोट्स की साइज छोटी होती जा रही है। अब पहले 2 पेज में थी, मैं कुछ पढ़ा, साइड में उसके पॉइंटर लिख दिए इतने 5 लाइन में, उसी नोट्स में बार बार वही नोट्स रिवाइज करूँगा। अब मैं बस वो 5 पॉइंटर ही देखूँगा, मेरी वो टॉपिक कवर्ड है। तो यू हैव अ कंसोलिडेटेड, क्रिस्प येट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स विच शुड कवर एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। अगर वो है, कंटेंट के पीछे मत भागो, कंटेंट अगर रेडी है, आंसर राइटिंग करो, बार बार प्रैक्टिस करो, किसी से चेक करवाओ, वो उस पर इम्प्रूव करो,
थिंक करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अनसीन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो करो। हो सकता है तो मैं लिंक शेयर करूंगा तो उस पर आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल द ज्योग्राफी पार्ट। कहीं कहीं पे मैंने बोलने में थोड़ी बहुत मैं लड़खड़ा गया हूँ और थोड़ा सा तो माफ़ कर दें। थैंक यू वेरी मच।